So guys, welcome to my channel, Pooja and Pankaj. Hi. Hi. So guys, आप दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये हार्डकोर हार्डवेयर वर्क में आप लोग कहाँ से आ गए? You can call that as a destiny. Destiny. हाँ. Pankaj was into this because of his family business. Then I thought ये इसका टाइमिंग इतना erratic है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा अपने हस्बैंड के साथ. Just got married. Then I thought कि let's give up my career and let's shake hands in this business. Then we both did our ISSA We both are certification. internationally certified trainers. अच्छा. We did this after we got married. Then I did nutritionist course. So wholeheartedly I was into this after the marriage. So we both are into it for a very long time now. 24 years it has been. Yeah. Good journey, so good, so far so good. So far very nice journey. But अब we want to promote ourselves because अब ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हुई हैं कि we want to increase the parameters of our experience और अपना जो हमने सीखा है आज तक, we want to increase the parameters of this. We want to tell everyone how it should go for, because what are the basics, how you should go for it, right? And how life has taught us the different manners that you should proceed according to the age, because the experience that we have, right, I don't think so that much of the people have it in this industry. Correct. Right? Correct. So I think we know how to proceed. We can guide so many people. We have given so many transformation for the past 24 years without including steroids, only supplementations and diet. And our experience says every body type is different. And one should know how to proceed it, whether they are training under us or wherever they are, they should know about their trainers, how to go for it, and what is their target. That is very important. Very What true. are you focusing for? Fitness or you want to go into professionally? और मेरे अंदर एक चीज़ थी कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं. बिल्कुल So सही. I want to conquer this thing, this field, just because ये field जो है ये male dominating है. So मैं चाहती थी कि चाहे किसी भी एज में मैं भी इस फील्ड में आना चाहती थी, just because ये प्रूव करने के लिए फीमेल्स आर नॉट लेस देन एनीबॉडी. नहीं पूजा, अब तो आप हर स्टेज को डोमिनेट करने लग पड़े हो. रिसेंटली आपने ओलंपिया में मेडल भी विन कर लिया है. थैंक यू सो मच. अच्छा गाइज, ये तो हुई आप दोनों की एक इंट्रोडक्शन वाली बात. नाउ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि इतने साल की कोचिंग और ट्रेनिंग देने के बाद में सडनली आप दोनों ही अब compete करने लग पड़े हैं ऑलमोस्ट हर चैंपियनशिप के अंदर. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि पहले ना हमारी विजन वाज ओनली एंड ओनली बिजनेस, आवर जिम, वी वांट टू इंक्रीज द रीच ऑफ द क्लाइंट्स एंड ऑल. बट अब ना जो चीज़ें इंस्टाग्राम यूट्यूब में से जो और ये सब चीज़ें इतना पैरामीटर बढ़ चुका हुआ है. सो वी थॉट व्हाई नॉट ट्रेन ओवरसीज. मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिनकी शादी होकर बाहर चली गई, कोई मुंबई में सेटल्ड है, कोई दुबई में सेटल्ड है. सो आज तक उनके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि हमें आपके जैसी ट्रेनिंग नहीं मिली. सो आई थॉट यही कोरोना ने ही हमें ये एक राइट Passage दिखा चैनल दिया. दिखाया कि आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम एंड अब मैं उनको ऑनलाइन ट्रेन करती हूँ. सो इससे ना मेरा रीच बढ़ा. सो आई थॉट व्हाई नॉट प्रमोट आवर सेल्फ, you know, globally. I'm training globally. I'm training Canada, I'm training US, I'm training in Dubai, I'm training in Australia. Wow. So अब मतलब I want to increase my reach, Okay. increase my parameters. And the most important thing was that we never went for it, we never wanted to go for it, but I think COVID taught us that I think we should give a transformation to ourselves at this age, right? And I think that actually went very well, because we met so many people, so many people. And you know what, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. compete करते It's हुए. very good in other part, because when we met them and they also never met us, they never knew about us. So they came to know about us that we both are couple and we train and we have our gym, and it has been Yes, so yes. many years, right? Yeah. They never knew about it. Correct. So we came into entirely a different world, All right. in which we saw, they also saw, and they got to know us. We also went with that. So I think that's the best part, that we are reaching to the other people who don't know about us. So we are actually going with that, and hopefully in the next coming years also, this year also, I think we'll be competing and going abroad also with the competitions, and hopefully we'll win that. And obviously everybody needs money, and Correct. this field At the end, you is the need most money. expensive field, what I feel, because you're putting money into yourself, in your diet, in your programs, right? Trying to be fit and trying to prove yourself at
every level, at every age, and trying to inspire other people also with that how you should go for it at this age. True. Because this age is very important, at which I'm और 46, she is लोग 43. ना एक एज के बाद आकर ना दे थिंक कि ओके फीमेल स्पेशली फीमेल्स बच्चे पैदा कर दिए फैमिली पूरी हो गई नाउ आई एम डन यू नो दे डोंट थिंक अबाउट देमसेल्फ दे डोंट थिंक कि क्या मसल की क्या इंपॉर्टेंस है क्या एक्सरसाइज से आपको सिर्फ एक्सरसाइज से आपको पतले नहीं मिलता मतलब आपको एक अच्छी फिगर ही नहीं अटेन करनी आपको फिटनेस आपको हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनी लाइफ अपनी फैमिली देखनी है आगे Yes. यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं सो सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. जो कि आज की डेट में फीमेल्स में बिल्कुल भी नहीं है बहुत स्पेशली कम इन है। इंडिया they can spend a lot of money on parlors they can spend a lot of money on salons but they hardly spend on themselves in this field fitness में health में And I think fitness is very important for females. This is what I personally feel, because the more fitter you are, the more glamorous आप आज की and डेट में beautiful हमारी- you look, आप right? आज You की can डेट में wear any हमारी clothes. दादियों को मम्मी को नानियों को देखो सब अपने घुटने पकड़ के बैठे हुए Correct. हैं सो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बुढ़ापा ऐसे निकले नहीं नहीं पूजा आप तो डे बाय डे और यंग होते चले जा रहे हो अच्छा मैं बात करता हूँ अब आपके ओलंपिया एक्सपीरियंस के बारे में जो लास्ट आपने मुंबई एमेच्योर ओलंपिया में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपकी विनिंग भी रही थोड़ा सा उसके बारे में मेरे व्यूअर्स के साथ में अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए दैट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस यू नो मैंने हर तरह के लोग देखे कुछ ऐसे लोग भी थे हम यूजुअली उस टाइम पे कार्ब्स लोडिंग करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट हम कार्ब्स लोडिंग करते हैं उस लास्ट टाइम पे मैंने कुछ ऐसे भी फीमेल्स देखी जो कार्ब्स लोडिंग कर रही थी इन अ वेरी यू नो रॉ थिंग्स बच्चे वाली थी बच्चे के साथ आई हुई थी देवर कंपीटिंग इन बिकिनी सो यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ यार हमारा इंडिया भी इस तरह में आ रहा है एक यू वोंट बिलीव एक फीमेल को मैंने देखा जो कि घर से पराठे बना के लाई हुई थी एंड शी वाज ईटिंग थोड़ा थोड़ा करके कार्ब्स पराठे बाकी लोग फैंसी कोई प्रोटीन बार्स ले रहा है कोई राइस केक्स खा रहा है उसको देखा मैंने पराठे खा रही है सो यू नो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हर तरह के लोग थे यंग में खेलना यू नो मैंने compete किया 20 साल के बच्चों से 18 साल की लड़कियों से सो यू नो एक उस एज से compete करना वो itself was a challenge so it was overall a very nice experience and one thing मैंने ये देखा कि you know जब आप अपनी कॉस्ट्यूम में चलते हैं सो लोग आपको गलत नजर से नहीं देखते दे रियली रिस्पेक्ट यू एज एन एथलीट करेक्ट दिस वाज सो पूजा मैं आपके इसी एक पॉइंटर से आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा वो है कि जो आप लोग अपनी बिकिनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं आई मीन आप लोग स्टेज पर तो पहन लेते हैं मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ आप लोग स्टेज पर बहुत कॉन्फिडेंटली पहनते हैं जजेस के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट भी करते हैं और आप लोगों को उसकी एप्रिसिएशन भी मिलती है बट जब उस चीज़ को सोशल मीडियम्स के ऊपर फ्लॉन्ट करने की बात आती है तो आप लोग कितना कंफर्टेबल रहते हैं कितना इजीली उन चीज़ों को शेयर कर पाते हैं उसके बारे में बताइए see when I started I just started 2 months back only when I started receiving very bad calls as well अच्छा you know I started receiving some video calls which were very bad I can't even express that Okay. so पहले I was very shy but फिर I thought कि अगर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पे बहुत एथलीट्स हैं जो आपको बोलते हैं प्लीज मैम हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं सो व्हेन यू सी कि बहुत सारी रिस्पेक्ट भी मिल रही है तो उसके साथ ये सब चीजें भी मिलेंगी एंड यू हैव टू फेस दिस आल्सो We are just in a learning process, right? Initially I was very shy about to take this as a in social media but now I'm confident पंकज आपको कैसा फील होता है जब किसी इवेंट पर पूजा ने बिकिनी कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और फैंस आकर के कहते हैं कि हमें मैम के साथ में फोटोग्राफ क्लिक करवाना है आई मीन कहीं पर कोई इनसिक्योरिटी तो फील नहीं होती अंदर से नहीं बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट आई फील सो प्राउड Yes. that at this age, as I said, this age is very important to us. Yeah. At this age, if suppose we are competing and winning the medals and कोई भी हो चाहे मैं हूँ चाहे ये है right and people are coming to us for the photographs Yes. so I think that is a very proud moment for any of us. और एब्सोल्युटली मैंने ये देखा है जितने कॉम्पिटिशन्स में जो लोग आते हैं वो दे रियली रिस्पेक्ट यू Yeah. यू नो एज एन एथलीट दे रिस्पेक्ट यू हाँ. ऐसा नहीं है कि उनकी नज़रों में कुछ गलत है या मतलब मैंने जब अभी तक जितना कॉम्पिटिशन्स में देखा है दे वेरी फिल्टर्ड क्राउड एंड दे रियली रिस्पेक्ट करेक्ट वो भी है but there is a mixed match thing also like
जैसे इसने एक मेडल लिया और मैं आई वाजंट प्लेइंग इट, सो देयर आर सो मेनी पीपल हु केम टू मी एंड आस्क्ड मी, सर आपने नहीं खेला, आपको कैसा लग रहा है, मतलब ड्यू मतलब शी वन द गोल्ड एंड आई डिडंट हैड एनी मेडल एट दैट टाइम. आई सेड इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? समबडी हैज टू sacrifice, right? Because टीम वर्क होता है, it's a teamwork, right? ये अकेले का नहीं है काम. मेरे स्टेज पर जाने के लिए पंकज का बहुत बड़ा हाथ है. पंकज का कॉन्फिडेंस देना, लास्ट मोमेंट तक पंकज मुझे कॉन्फिडेंस देते रहते हैं. So Mentally, physically, you have to be prepared for that, right? For any challenges that are in your way, that are going to come up, because you never know what's going to be coming next. Correct. Right? So you have to accept the challenge, face it, and go with the flow. No doubt guys, आप दोनों की टीम जो है वो एक फिटेस्ट एंड डेडली टीम है, एंड जिसकी वजह से आप लोगों के सामने रिजल्ट्स भी आते हैं. अच्छा, मैं पंकज आपसे अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडियम्स पर, इवन इवेंट्स के ऊपर सुनाई दी जाती है, वो होती है कि जजिंग जो है वो फेयर नहीं हुई. सो कभी ऐसा कोई स्टांस या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके सामने आया है जहाँ पर आपको लगा हो कि जजिंग जो है वो फेयर नहीं है? I was playing in masters category. अच्छा. And I think it was from government side. I won't name it, but the thing was कि what I saw that I was above 40, right? So they didn't ask me for my PAN card or Aadhaar card for the proof of the age. And when I was on the stage, I saw three guys who were of age of 30 to 35. Achha. Right? But that was my first experience towards that. Then after the stage, when I came down, I called my mentor and I asked him, this is what happened. So he told me that you should have called the judge and asked for the age proof. So I never knew it. But from that point onward, right, I started asking for the age proof, because you know what, the age matters a lot. Masters means 40 plus. When we are competing in that category, then everything, right, matters, because whosoever I'm competing with any of 40 above, right, then it doesn't matter. But if they are less, obviously they are going to bigger size, right? They have a bigger muscles. So obviously you can't compete with them. नहीं, the thing is कि while registration आपको age proof लेना चाहिए, you know. एक अगर suppose 40 में आप ये नहीं हो ना, 40 में अगर 10 लोग हैं तो आप देखो कि अच्छा यहाँ 10 लोग हैं, so let's compete in this category. इसमें ना junior category में भी I think there is not a fair judgment, because junior category में they also don't see the age. The age is till 23, and I think guys above 23 also, they are also registering in junior, they are playing in senior also. True. मतलब how is it possible? You are playing in junior also, you are playing in senior also. So which means कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ जरूर है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ओके. सो गाइज, मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ फ्रॉम मुंबई एमेचर ओलंपिया, जो रिसेंटली ही हुआ था. सो मैंने वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की कि 3 तरीके की क्लासेस वहाँ पर डिवाइडेड थी इंसानों में. एक थे जो जिम ओनर्स थे और प्लस खुद एथलीट थे, एक थे जो ट्रेनर्स थे और खुद एथलीट थे, और एक ऐसी क्लास थी जो किसी भी चीज़ से बिलोंग नहीं करते, वो कोई नॉर्मल जॉब करते हैं या सिर्फ अपनी एक हॉबी को फॉलो करते हुए एथलीट बन गए हैं. 3 तरीके की क्लासेस वहाँ पर घूम रही थी. सो क्या ऐसी कभी कोई चीज़, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने ली है या आपके सामने नजर आई है? No, we never felt that, because as I said before also, we had been training for the past 24 years. We are totally grounded. We have won so many medals within 2-3 months. But the ego kind of a thing, or like thinking like I'm the owner of big guns, or I've trained for 24 years, or I should be sitting on the judge seat, right? It has never been into my frame of mind, because I think every other person is equal. We actually praise the person who has a good physique, right? Because we understand what kind of a patience, what kind of a dedication, what kind of a determination that person has it to achieve that goal. Absolutely. Right? So I think it should not be like that. If suppose you have felt, then obviously you are a good observer, right? You might have felt it, but we don't have any egos or something like that in our frame of mind to actually go for it, because we respect everyone. Okay. And मैं ग्रीन हाउस में थी, सो ग्रीन हाउस में ग्रीन रूम में, सॉरी, जो ग्रीन रूम में थी मैं, वहाँ पर एवरीबडी वाज इक्वल. सब लेटे हुए हैं, सब आराम से आपस में बातें कर रहे हैं. सो देयर वाज नो ईगो, नथिंग. एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग देयर ओन वे. ओके. सो आई डिडंट फेल्ट एनीथिंग. ये तो हुई काफ़ी हैवी टॉक आप लोगों के साथ में. अब कुछ लाइटर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ.
सबसे पहले वर्कआउट करना किसने शुरू किया और किसने किसको चेज किया? पूजा ने पंकज को या पंकज ने पूजा को? नहीं, पंकज का वर्कआउट इज टोटली डिफरेंट. माय वर्कआउट इज टोटली डिफरेंट. आई एम मोर इनटू HIIT. ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ No, HIIT. I'm not HIIT. He's a total bodybuilder. I'm more into weights. I love doing weights. Weight and I hate lifting weights. ओके, सो यानी कि आप दोनों शादी से पहले ही फिटेस्ट थे. हाँ, बट ये होता है कि मैंने अगर वर्कआउट कर लिया तो शी हैज टू डू द वर्कआउट. क्या ये बात ये है. कंपटीशन जरूर है. हाँ, अच्छा, वो नहीं छूट सकता कि अगर मैंने अगर 5 मिनट ट्रेडमिल भी फालतू कर लिया तो शी हैज टू डू इट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो यानी कि So हेल्दी I कंपटीशन chase- रहता है. I chase him. अच्छा, ओके. अच्छा गाइज, अब आप दोनों बताइए आने वाले 5 साल का आप लोगों का विजन क्या है ताकि हम इस चीज को रैप अप कर पाए. नहीं, वी हैव अ बिगर विजन फॉर दिस. The way we are competing, we want to explore more. We want to Okay. meet so many people, ठीक है. right? Whether that's in India or abroad, right? We want to earn money, right? Yes. Definitely, money That is is the the first money is the priority. first priority because उसके बिना तो कुछ एक कंपटीशन पे बहुत पैसा बहुत पैसा खर्च होता है और So, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन तो है ही है, उसके साथ पैसा भी बहुत खर्च क्या होता आप दोनों एज अ एथलीट स्पॉन्सरशिप के लिए भी ओपन है? Yes, yes. अच्छा, okay, वेरी okay. मच ओपन फॉर द स्पॉन्सरशिप. ऑल राइट. सो पूजा, आपका क्या विजन है? यही, आई वांट सम स्पॉन्सर्स. आई वांट टू compete abroad, but for that I need some sponsors because मेरा ये एक ओलंपिया में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं. So I want कि अगर कोई स्पॉन्सर मिलता है, अगर कोई अच्छी ब्रांड्स मुझे मिलती हैं, जी. रीच करती हैं, then I'll go forward. I'll play internationally as well. And our vision is to educate people, whatever age they are into, right? They can freely talk to us, WhatsApp us, or whatever they have in their mind. They have any questions, right? They can ask us, right? Because you know what I feel after so many years of fitness also, I feel that कभी भी कोई जिम में उतर के आता है ना, सबसे पहले वो ये पूछता है, अच्छा हम कितनी जल्दी पतले हो जाएंगे? True. Right? So that is the toughest question which I think everybody has it and I don't know why. तो मैं बोलता हूँ उनको start taking baby steps. What are baby steps? Baby steps are something that you have dropped in the gym, right? आप आए हो, that is a baby step, right? उसके बाद आप आके वर्कआउट शुरू करो, दैट इज अ बेबी स्टेप. डोंट थिंक अबाउट दैट कि मैं 2 महीने में पतला हो जाऊंगा या 2 महीने में बॉडी बन जाएगी. दैट इज बेकार की बात. थिंग इज दैट यू स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग. क्योंकि जहां आपने स्टार्ट किया एंजॉय करना, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि जो चीज आपने एंजॉय नहीं करी, कोई भी आपको कुछ नहीं करा सकता, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे आपसे वो 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, 30,000 ले ले, कुछ भी ले ले. ठीक है. So the money is of no use until unless you are interested and you started enjoying it. ठीक है. So the thing is, the broader picture is that whosoever has any kind of things right in their mind, I want to educate them how you should proceed with that. So the broader picture is more fitness into the industry, which is still lagging. राइट Right. राइट And राइट. अभी भी कितने बच्चे हैं जिनको अगर आप बोल देना प्रोटीन पाउडर लेना तो उनके माँ बाप बोलेंगे पागल है, क्यों प्रोटीन पाउडर लेना है, डब्बे क्यों खाने हैं तूने? बिल्कुल ठीक है. बात डब्बे खाने की नहीं है, बात हेल्थ इश्यूज है. बात मैक्रोस की है कि आपके मैक्रोस पूरे होने चाहिए. लोगों को एजुकेशन ही नहीं है उस चीज की कि कितना खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है. Yeah. राइट? आप सब खाइए, पराठे भी खाइए, चिकन भी खाइए, सब चीजें खाइए, बट दैट हैज टू बी इन अ लिमिट्स. एंड व्हेन यू हैव ईटन ऑल दैट, देन यू शुड बर्न इट. सिंपल लॉजिक. ट्रू. Right? So that is a bigger picture. To go with the fitness, to educate people, to earn money, that is the priority, definitely. Right? But education matters a lot to everyone. चलिए, तो अब आप मेरे को लास्ट एक चीज बता दीजिए कि अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई भी जन आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कहाँ पर आ सकता है और वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अपनी जिम का नाम, एड्रेस और कांटेक्ट नंबर वो दे दीजिए. हमारे जिम का नाम है द बिग गन जोन फिटनेस. दैट इज इन मालवीय नगर. वी बोथ ट्रेन, राइट? वी ट्रेन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. तो आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. नंबर इज 9810069762. और इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम भी इंस्टाग्राम बताइए. पूजा_be fit with me. और पंकज_be fit with me. ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच मुझे और मेरे व्यूअर्स को आज टाइम देने के लिए. Thank you so much. So much.